Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, Punctuation and Capital Letters. So let's start the chapter. Chapter number 18, Punctuation and Capital Letters. To make our statements clear to understand, we use some marks or signs. अपनी statements को clear करने के लिए कि वो आसानी से समझ आए, हम कुछ marks या हम कह सकते हैं कि हम कुछ signs का use करते हैं. These signs are called punctuation marks. तो इन signs को हम कहते हैं punctuation marks. The proper use of punctuation and capital letters give more clarity and sense to the passage or the speech. Punctuation का proper use और capital letters का proper use हमारे जो passage है या जो हमारी speech है उसे और ज़्यादा clarity और sense provide करता है. The following are the main punctuation marks commonly in use. तो यहाँ पर कुछ punctuation marks given है जो हम ज़्यादातर use करते हैं. Comma, semicolon, colon, full stop, question mark, mark of exclamation, inverted commas, apostrophe. Use of punctuation marks. Punctuation marks का use देखते हैं. पहले है comma. A comma is used in the middle and never at the end of a sentence. Comma हमेशा middle में use होता है, कभी भी sentence के end में use नहीं होता. This is done to make the sentence clearer, specifically to separate items in a list. Comma की help से हम sentences को clearly समझ पाते हैं. मतलब sentence को और ज़्यादा clear बनाने के लिए हम comma का use करते हैं जब हमें कुछ list of items को separate करना हो. A comma is important to avoid any possibility of misunderstanding in a sentence. Comma इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके की sentence को पढ़ने में या समझने में कोई misunderstanding ना हो. Comma is used. तो comma कहाँ पर use होता है? To separate words in the series. Series में जो words हैं उन्हें separate करने के लिए. To separate a clause in the series. Series में जो clause होती हैं उन्हें separate करने के लिए. To set off a noun of address, noun of address को set off करने के लिए. To separate the parts of a date, date के parts को separate करने के लिए. To separate a special expression like yes, oh, no, etc. जब हम sentence में कुछ expression लिख देते हैं जैसे yes, no, oh, तो उन्हें separate करने के लिए हम comma use करते हैं. To separate a statement from a question tag से बाकी का statement separate करने के लिए. Before and after a word of opposition, अपोजिशन के वर्ड से पहले या बाद में. टू सेपरेट अ रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए. आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज एंड क्लॉज, इंट्रोडक्टरी फ्रेज या क्लॉज के बाद. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. दिस बुक इज नॉट गुड इजंट इट. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन टैग से पहले लगाया है कॉमा सेपरेट करने के लिए बाकी के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग से. Virat Kohli, the captain of Indian team, is a dependable player. He said, I am going to London. As far as my opinion, you can complete it alone. Mr. Chopra is faithful, loyal and honest. I do not know who you are, how you got in and why you are here. Shivi, will you help me in solving this sum? On August 20th, 2005, my sister took birth. No, I cannot come to you. तो इस तरीके से हम कॉमा का यूज करते हैं. सेकेंड है सेमीकॉलन. सेमीकॉलन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमास. सेमीकॉलन का यूज करते हैं हम कुछ कम इंपॉर्टेंस का पॉज देने के लिए. सेमीकॉलन इज यूज कहाँ पर यूज होता है सेमीकॉलन? When the coordinating conjunction do not appear between the principal clause and the coordinate clause. जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आती है बीच में प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज के. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज. जब लूजली रिलेटेड क्लॉज को हमें सेपरेट करना हो. एग्जाम्पल देखते हैं. यू मस्ट कंप्लीट इन द मैच, यू विल गेट द प्राइज. तो यहाँ पर कंजंक्शन तो नहीं है पर हमें सेंटेंसेस को अलग अलग दिखाना है तो हमने सेमीकॉलन का यूज किया है. मिसेस चौधरी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. Unfortunately, she met with an accident. थर्ड है colon. The colon is used. colon का यूज हम कहाँ करते हैं? To illustrate and to explain a statement. किसी statement को explain या illustrate करने के लिए.
It represents a pause of greater importance than that shown by the semicolon. सेमीकॉलन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉज को देने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी इज एज फॉलोज. तो जब हमें इसे एक्सप्लेन करना हो स्टेटमेंट को तो वहाँ पर हम कॉलन लगा देते हैं. द मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स आर द फॉलोइंग. फिर आता है फोर्थ, फुल स्टॉप. A full stop is placed at the end of assertive and imperative sentences. It indicates. Full stop end में आता है assertive और imperative sentences के. और किस किस को इंडिकेट करता है फुल स्टॉप? एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ कमांड. जब हम किसी कमांड या स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस या वो स्टेटमेंट वहां पर फिनिश हो गया है. आफ्टर इनिशियल्स, इनिशियल्स के बाद एन एब्रीविएशन और एब्रीविएशंस में. एग्जाम्पल्स देखते हैं. गुलिवर वॉज एन एडवेंचरस मैन. कम हियर एंड सिट डाउन. अब हमने अगर इनिशियल्स लिखे AP शर्मा तो बीच में हमने फुल स्टॉप लगाया, या हमने एब्रीविएशन लिखा MSc BAMS तो इनमें भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. फिफ्थ है क्वेश्चन मार्क. अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड. कहाँ पर लगता है क्वेश्चन मार्क? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन. जिस भी सेंटेंस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. व्हेन अ क्वेश्चन इज बीइंग रिपोर्टेड एंड नॉट डायरेक्टली आस्क्ड. जब क्वेश्चन रिपोर्ट किया गया है, डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, तो वहां पर भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वेयर डू यू लिव? ही आस्क्ड व्हाट आर यू लुकिंग एट. सिक्स्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क. एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस और कमांड्स. एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम इंटरजेक्शंस या कमांड्स के बाद करते हैं. इट एक्सप्रेसेस इमोशंस. ये इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो एंगर के हों, सरप्राइज, फियर, पेन और प्लेजर. एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. What a complete waste of my time. The puzzle is driving me up the wall. Oh, I will miss this place. Seventh है inverted commas. Inverted commas are also called quotation marks. Inverted commas को quotation marks भी कहते हैं. Inverted commas are used to show the beginning and end of a reported speech. Inverted commas का यूज किया जाता है reported speech की beginning और end को show करने के लिए. Use a quotation mark to show a quoted word, phrase and title. हम quotation mark का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमें कोई quoted word को, phrase को या title को show करना हो. All punctuation marks that belong to a quote are enclosed inside the quotation marks of the quote. तो जो भी punctuation marks है जो किसी quotation से belong करते हैं वो सभी quotation marks के अंदर आते हैं. Examples देखते हैं. He exclaimed, I would rather live. War and Peace is a novel by Leo Tolstoy. He asked, do you like me? Next है apostrophe. An apostrophe is used in the following situations. तो apostrophe का हम कहाँ पर यूज करते हैं? To form contractions by showing the numbers or letters that have been left out. जब हम contractions करते हैं मतलब हम कुछ numbers को या letters को नहीं लिखते हैं तो उनको show करने के लिए हम apostrophe लगाते हैं. To show a possessive of a noun. और जब हमें noun possession show करना हो तब भी हम apostrophe का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे I am अगर हमें लिखना है तो एक ही जगह पर हम क्या लगाएंगे? apostrophe. तो I am इस तरीके से हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके. You are, we are. These boys clothes are very dirty. तो यहाँ पर possession show करने के लिए भी हमने apostrophe का यूज किया है. अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स का यूज. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो किस किस सिचुएशन में कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं? प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर. जो भी प्रॉपर नाउन्स है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं. एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है. डिग्री एंड टाइटल बिगिन विद कैपिटल लेटर. कोई भी डिग्री या टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. ईच लाइन ऑफ अ पोएम बिगिन्स विद कैपिटल लेटर. पोयम की हर लाइन कैपिटल लेटर से शुरू होती है. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. इंटरजेक्शंस बिगिन विद कैपिटल लेटर. इंटरजेक्शंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. कोटेशंस बिगिन विद कैपिटल लेटर. और कोटेशंस भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होती हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी आर गोइंग टू द मार्केट. I am working hard to achieve my aim.
Radha is well mannered. Oh, that is a surprise. Every artist was first an amateur. MA President, Vice Chancellor Bhatia Sharma. He listens to us all day long. तो यहाँ पर सब जगह पर हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं. नाउ टाइम टू आंसर. एक्सरसाइज करते हैं. पंचुएट द फॉलोइंग एंड यूज द कैपिटल लेटर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. सेंटेंसेस को आपको पंचुएट करना है और कैपिटल लेटर का भी यूज करना है जहां पर भी रिक्वायर्ड हो. तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सर, आई शैल विलिंगली ओबे योर ऑर्डर, प्रॉमिस्ड राखी. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे. इसको हम शुरू करते हैं इन्वर्टेड कॉमा से. ये हो जाएगा सर. सर के बाद आएगा कॉमा. आई शैल willingly obey your order. फिर यहाँ पर आएगा promised राखी. राखी का H कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है. सिंस द सन हैज सेट इट हैज बिकम वेरी प्लेजेंट. तो यहाँ पर सेंटेंस शुरू होगा सिंस से. तो सिंस का एस कैपिटल. सिंस द सन हैज सेट it has become very pleasant. और एंड में आएगा फुल स्टॉप. थर्ड सेंटेंस है. he came, saw and conquered. तो यहाँ पर he का H कैपिटल. he came, then comma, saw and conquered. और एंड में फुल स्टॉप. इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद पंचुएट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको पंचुएशन और कैपिटल लेटर का यूज समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.